So the last topic of haloalkanes and haloarenes, the polyhalogen compounds, chloroform and iodoform only. And then we have iodoform test, which is very important, and silver nitrate test. Now, silver nitrate test is a test that distinguishes between haloalkanes and haloarenes, a very important test to distinguish between them. And iodoform test is a test that distinguishes between certain compounds, certain alcohols, aldehydes, ketones, carboxylic acids. So we will study eventually in this video. First of all, let us discuss chloroform and iodoform. Now, in chloroform and iodoform, these are both of them are polyhalogenated compounds. Chloroform is CHCl3. Chloroform is CHCl3 and iodoform is CHI3. Now there are some other polyhalogenated compound like freon, but these have been excluded in the reduced syllabus, and then some other also have been excluded. So in some of the boards, only chloroform and iodoform is there. And in this topic, we will cover methods of preparation of chloroform, methods of preparation of iodoform, and their chemical reactions. I am discussing this part only. And again, a sort of summary, like I'll be discussing about I'll discuss the pointers regarding the methods of preparation of both. So let us start with chloroform. So first of all, I am talking about chloroform. Now, chloroform is trichloromethane. If I talk about its IUPAC name, it is trichloromethane. Now, chloroform can be prepared in lab with a different method, and then on large scale, which we call manufacturing of chloroform, which we do in the industries. So there are two ways to prepare chloroform. So methods of preparation. So what I was saying, lab method, and then large scale, or which we call manufacturing of chloroform, that is done in the industries. Okay, so lab method. In lab, we prepare chloroform by two ways. One is either using ethanol, ethyl alcohol, a very common organic compound easily available in labs, or by using acetone, or what we call IUPAC में propane 2-on or propanone. So these two reagents could be used in lab to prepare your chloroform. And while preparing chloroform by these two methods, what do? जब इथेनॉल यूज करते हैं तब भी हम यूज करते हैं इथेनॉल के साथ ब्लीचिंग पाउडर, पेस्ट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर with water, basically paste of. Now what is bleaching powder? Bleaching powder with water, basically it's a paste. And here also we use acetone and paste of your bleaching powder here also. So what I'm trying to say is the reagent, यहाँ पे ethanol है, यहाँ पे acetone है, but the other reagent is the same, that is bleaching powder. I'll explain the reactions also. See, ये जो reaction है इसको हम steps में करते हैं. जो इन दोनों केसेस में रिएक्शन है जो लैब मेथड की, we do it in steps. इसको सिंगल स्टेप में भी लिखा जा सकता है, पर हम स्टेप्स में करते हैं बिकॉज इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू रिमेम्बर, राइट. सो हम इसको स्टेप्स में ही करेंगे, राइट. ओके, सो इसमें भी हम ब्लीचिंग पाउडर का पेस्ट यूज करेंगे, इसमें भी. सो व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2. सो दिस इज ब्लीचिंग पाउडर, हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड. ठीक है, अब मैं बात करती हूँ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की. मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगी स्टेप्स. सो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में जो है, ओके, सो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में हम अगेन जाएंगे, तीन मेथड से जाएंगे हम इसमें. सो एक है यूजिंग मीथेन,
दूसरा है using carbon tetrachloride CCl4 which is also easily available, and तीसरा है chloral hydrate. I'll tell you what the compound chloral hydrate is. Chloral hydrate. Okay, so what chloral hydrate is? It is trichloro acetaldehyde, basically trichloroethanol. So with one water molecule of hydration, CCl3CHO.H2O. तो ये है हमारे 5 मेथड जो हम यूज करेंगे क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन में. अब जैसे मैंने कहा, इसमें रिएक्शंस जो हैं दे इन्वॉल्व लॉट ऑफ स्टेप्स. if you follow the steps are quite similar ethanol and acetone के, ठीक है, and then it becomes easier if you follow the steps. And then large scale तो बहुत ही easy है, one step process. So let me start with the laboratory preparation of your chloroform. So lab preparation. तो लैब प्रिपरेशन में जैसे मैंने पहले बताया, फर्स्ट आई विल बी डूइंग इथेनॉल यूजिंग इथेनॉल, ठीक है. सो इसका फर्स्ट स्टेप है. स्टेप 1 में क्या होता है, जब हम ब्लीचिंग पाउडर का पेस्ट लेते हैं वाटर के साथ, सो बेसिकली दिस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, it combines with water, it reacts with water to liberate chlorine gas along with calcium hydroxide. तो ये जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर ये रिएक्शन करता है वाटर के साथ and it gives us chlorine and calcium hydroxide. Now both these products formed will be used in the reaction. So क्या होता है, नेक्स्ट हम जब समझेंगे कि जो हमारा क्लोरीन है वो अब जो यहाँ बना है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करेगा एंड क्लोरीनेटिंग एजेंट का भी काम करेगा. मतलब क्लोरीन जो है वो जो ये बना वो इथेनॉल को पहले ऑक्सीडाइज करेगा इनटू इथेनॉल एंड देन वो उसको क्लोरीनेट करेगा into trichloroacetaldehyde. I'll explain you. See, ये रिएक्शन आप जो इथेनॉल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड्स बनते हैं ये आप अल्कोहल्स में पढ़ेंगे. इट इज वन ऑफ द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स दैट अल्कोहल्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू एल्डिहाइड्स. इन द सेम वे आप एल्डिहाइड्स में एल्डिहाइड की प्रिपरेशन में पढ़ेंगे, aldehydes की प्रिपरेशन में you will study that on oxidation of ethanol aldehydes can be formed. So ये एक important reaction बन जाती है. मतलब आपको याद हो जाएगा with time that ethanol, I mean alcohols on oxidation give aldehydes. तो ये वही रिएक्शन है. तो स्टेप 2 में जो मैं लिखने जा रही हूँ, मैं ये लिखने जा रही हूँ that chlorine Cl2 formed acts as an oxidizing as well as chlorinating agent. तो ये दोनों स्टेप्स करने हैं अब हमें. पहले ऑक्सीडेशन एंड देन क्लोरीनेशन, क्लोरीनेटिंग एजेंट. सो सबसे पहले बात करते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्लोरीन ने क्या किया एंड क्लोरीन ने मतलब क्या रिएक्शन हुई इसमें. सो हमने क्या लिया था, रिएजेंट इथेनॉल C2H5OH. तो क्लोरीन इसको ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू इथेनॉल यानी कि एसीटल्डिहाइड. करेक्ट, ये रिएक्शन होगी. This will happen. Ethanol will oxidize chlorine will oxidize ethanol to ethanol. तो ये हमारा बन गया इथेनॉल और एसीटल्डिहाइड. अब एज क्लोरीनेटिंग एजेंट इसका क्या काम है, क्लोरीनेटिंग एजेंट इसका काम ये है कि जो ये हमारा CH3CHO बना है इसको CCl3CHO में कन्वर्ट करते हैं. ओके, सो CH3CHO को क्लोरीन ऑब्वियसली इसके लगेंगे 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे, CCl3CHO में कन्वर्ट कर देगा एंड साथ में बनेंगे 3 HCl के मॉलिक्यूल्स. सो इसने 2 स्टेप में ये रिएक्शन हुई हमारी. क्लोरीन जो है उसने पहले ऑक्सीडाइज किया, फिर उसने क्या किया, क्लोरीनेट कर दिया. सो वी गॉट ट्राइक्लोरोइथेनॉल. ठीक है, अब क्या होगा, अब ये फाइनल चीज है जो ये हमारी बनी है ना, अब इससे हमें क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा. अब इससे क्लोरोफॉर्म हमें कैसे मिलेगा, जो हमने फर्स्ट स्टेप में ये बनाया था, जो हमने फर्स्ट स्टेप में ये बनाया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी तो कहीं यूज होना है.
तो ये अब यहाँ पे यूज होगा। अब ये क्या करेगा, ये ट्राइक्लोरोइथेनॉल को हाइड्रोलाइज कर देगा इनटू क्लोरोफॉर्म। मैं बताती हूँ कैसे होगी ये स्टेप होगा ऐसे। अब स्टेप 3 है बेसिकली कि हाइड्रोलिसिस ऑफ, सो वी कैन राइट इट, हाइड्रोलिसिस ऑफ CCl3CHO by what? By calcium hydroxide. So CCl3CHO plus calcium hydroxide, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3। सो बेसिकली इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हमें क्या मिल रहा है, एक हाइड्रोजन मिल रही है जो कि यहां जा रही है। तो CCl3 की जगह ये बन गया CHCl3 और CHO का पार्ट उसमें चला गया। तो हमारे पास जो दूसरा कंपाउंड बनेगा वो बनेगा कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट, दिस इज फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट है कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट बन गया और ये हमारा बन गया क्लोरोफॉर्म। यही चाहिए था हमें, राइट। तो ये था हमारा बाय यूजिंग इथेनॉल। सेकंड मैंने क्या बताया, सेकंड है यूजिंग प्रोपेनॉन और एसीटोन। एग्जैक्टली सिमिलर स्टेप्स, लेट मी टेल यू कैसे। देखिए स्टेप 1 बिल्कुल वही है। स्टेप 1 जो है, स्टेप 1 एग्जैक्टली वही है जो हमने पहले किया, मतलब इसमें भी हमने ब्लीचिंग पाउडर यूज किया है, राइट। तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड वाटर से रिएक्ट करके लिबरेट करेगा क्लोरीन एंड साथ में बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, करेक्ट। अब स्टेप 2 में डिफरेंस है। स्टेप 2 में पहले क्या हुआ था, क्लोरीन जो बना था वो उसने इथेनॉल को ऑक्सीडाइज किया था इथेनॉल में। यहाँ पे ऑक्सीडेशन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी एसीटोन है हमारे पास, एक कीटोन है। तो स्टेप 2 में जो क्लोरीन का काम है, इट इज ओनली टू क्लोरीनेट एसीटोन। सो हेयर Cl2 form will act only as chlorinating agent, act only as chlorinating agent। तो बेसिकली हमने दूसरा कंपाउंड जो लिया है वो ये है, हमारा जो मेन कंपाउंड है दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो जो ये हमारा क्लोरीन बना है ये क्या करेगा, इसमें ये जो मिथाइल है इसको CCl3 में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि CCl3 ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3 ट्राइक्लोरोप्रोपेनॉन बन गया बेसिकली, ठीक है, along with obviously 3 molecules of HCl। एंड स्टेप 3 में सेम चीज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको हाइड्रोलाइज कर देगा इनटू क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म के साथ यहाँ प्रोडक्ट बना था कैल्शियम फॉर्मेट, यहाँ पे हमारे पास ये चीज बच जाती है, तो प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम एसीटेट CH3COO। अभी मैं दिखाती हूँ स्टेप 3। सो हाइड्रोलिसिस ऑफ CCl3 C double bond O CH3। So CCl3 C double bond O CH3 plus किससे हाइड्रोलिसिस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, which leads to the formation of chloroform along with calcium acetate। So these are the reactions that are that happen when we use ethanol or propanol in laboratory preparation of chloroform। So these reactions at first when you just look at the book and you just go through them, they appear to be tough, but they are not. If you understand the steps like the way I have explained, it becomes quite easier। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा laboratory preparation of chloroform। Now coming to your large scale। So large scale preparation, ओके। सो आई सेड 3 है। तो फर्स्ट है फ्रॉम मीथेन, वेरी सिंपल, ये हम कर चुके हैं।
जो हमने फर्स्ट प्रिपरेशन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन किया था, डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, सो वही है ये, डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन। तो ये कैसे होती है, ये आपने करी हुई है। मीथेन को जब हम क्लोरीनेट करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स इज फॉर्म्ड, जिसमें क्लोरोमीथेन बनता है, डाई क्लोरोमीथेन बनता है, ट्राई क्लोरोमीथेन यानी कि क्लोरोफॉर्म बनता है, एंड CCl4 टेट्रा क्लोरोमीथेन यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। अब क्योंकि ये रिएक्शन एक स्टेप में रुकती नहीं है तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं। सो लार्ज स्केल में इंडस्ट्रीज में हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, बाय वेरियस मेथड वी कैन सेपरेट देम। एक और चीज है, अगर रेशियो एडजस्ट कर लें क्लोरीन और मिथेन की, देन ऑल्सो वी कैन ऑब्टेन क्लोरोफॉर्म as the only product, so that is done on the large scale। ये हो गया। सेकंड मैंने बताया था using carbon tetrachloride, using CCl4, ओके। तो CCl4 को अगर रिड्यूस कर दें, मतलब कि उसमें एक हाइड्रोजन ऐड करके क्लोरीन रिमूव कर दें, सो बेसिकली रिडक्शन हो गई है, रिडक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, पार्शियल पार्शियल। कैसे कंप्लीट होती तो सारे के सारे क्लोरीन रिमूव होकर हाइड्रोजन लग जाते। सो बेसिकली क्या करेंगे, इसको करेंगे रिड्यूस आयरन स्टीम, एंड ये हमारा बन जाएगा क्लोरोफॉर्म। यहाँ से एक ये निकलेगा क्लोरीन, और यहाँ के एक हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, तो ये बन गया हमारा क्लोरोफॉर्म। सो बेसिकली सॉर्ट ऑफ रिडक्शन होगी, पार्शियल रिडक्शन हो गई CCl4 की। एंड थर्ड इज फ्रॉम क्लोरल हाइड्रेट, मैंने बताया था क्लोरल हाइड्रेट से। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिकॉज दिस मेथड, बाय दिस मेथड वी गेट प्योर क्लोरोफॉर्म। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि प्योर क्लोरोफॉर्म कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ऑप्शन क्लोरल हाइड्रेट यूजिंग CCl4, डायरेक्ट हेलोजिनेशन, इथेनॉल, ऐसे 4 ऑप्शन के साथ आ जाएगा। तो क्लोरल हाइड्रेट से याद रखिए वी ऑब्टेन प्योर क्लोरोफॉर्म। क्लोरल हाइड्रेट मैंने बताया था क्या है, CH3CHO, 1 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसमें डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड देन इट विल गिव क्लोरोफॉर्म along with sodium acetate along with water, okay। So these are the methods of preparation of chloroform, right। अच्छा, ये हो गए हमारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात है जो बतानी है मैंने, वो ये कि अगर हम बात करें, कंपेयर करें इथेनॉल को जो हमने पहले लैब मेथड कराया और इस एसीटोन या प्रोपेनॉन को, सो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट प्रोपेनॉन यानी कि एसीटोन इज प्रेफर्ड ओवर इथेनॉल। रीजन इज यील्ड, द अमाउंट ऑफ क्लोरोफॉर्म फॉर्म्ड इज बेटर इन द केस ऑफ एसीटोन and less in the case of ethanol, so this method is preferred। एक और चीज है, एक और वे है जो मैंने मिस कर दिया है यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया था ब्लीचिंग पाउडर यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ना इन द लैब यू कैन ऑल्सो यूज एन अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड, मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की जगह NaOCl यूज करके, सेम इथेनॉल या एसीटोन यूज करके आप सेम क्लोरोफॉर्म ऑब्टेन कर सकते हैं। सो ये मैं आपको अब बता देती हूँ, यहाँ पे ये मैंने मिस कर दिया है। सो इन लैब वी कैन प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म बाय यूजिंग अल्केलाइन। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समटाइम्स क्वेश्चन आ सकता है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, आई मीन वी शुड नॉट लीव एनी पॉसिबिलिटी, सो तभी करा रही हूँ। सॉल्यूशन ऑफ NaOCl दैट इज सोडियम हाइपोक्लोराइड, जिससे पहले लिया था कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर, यहाँ पे लिया NaOCl। तो ये कैसे होता है,
बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्लोरीन गैस पास करेंगे तो बन जाएगा NaOCl प्लस NaCl प्लस वाटर, राइट। तो करेंगे क्या इसमें, इसमें वही रिएक्शन देखिए आप सेम होंगी। सी एसीटोन लिया, इसमें हम प्रोपेनॉन यूज कर रहे हैं। आपका ये जो इसमें NaOCl है, अब ये इसमें एक्ट कर रहा है एज क्लोरीनेटिंग एजेंट, सो दिस इज एक्टिंग एज क्लोरीनेटिंग एजेंट इस केस में। एंड ये इसको CCl3 जो हमारा स्टेप 2 था पहले रिएक्शन का, जब हमने ब्लीचिंग पाउडर यूज किया था उसमें कर देता है। एंड देन अब ये जो है हाइड्रोलाइज हो जाएगा यूजिंग NaOH। ये जो NaOH चाहिए इसको हाइड्रोलाइज कर देगा, यानी कि CCl3COCH3 विल बी हाइड्रोलाइज। तो ये सेम वही हाइड्रोलिसिस हो गई जो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से की थी पिछले केस में, क्योंकि उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था बाय प्रोडक्ट, इसमें बना है NaOH। तो ये बन जाएगा क्लोरोफॉर्म प्लस यहाँ वहां बना था कैल्शियम एसीटेट, यहाँ पे बनेगा सोडियम एसीटेट। तो रिएक्शंस अगर आप ध्यान से देखेंगे सिमिलर हैं, रिएक्शंस आर क्वाइट सिमिलर। सो ये मैंने मिस किया था, सो आई वांटेड टू टेक अप। ये हो गया हमारा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट चीज, दैट इज योर दिस थिंग, chemical reactions of chloroform, right? So coming to chemical reactions of chloroform, important but very simple. ओके मैं कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज यूजेस कुछ भी नहीं करा रही हूँ, बिकॉज मेरा फोकस केमिकल पार्ट पे, मीन रिएक्शंस पार्ट पे है। सो केमिकल रिएक्शंस में ओके वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट है ऑक्सीडेशन। सी क्लोरोफॉर्म इज हाईली सेंसिटिव टू लाइट। ओके सनलाइट एयर से एक्सपोज होके जो आपका क्लोरोफॉर्म है ये एक पॉइजनस गैस बनाता है, फॉस्जीन COCl2 एक गैस बनाता है। सो इट इज इट इज नॉट एप्रोप्रिएट टू बी यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक एजेंट, बिकॉज एयर के साथ एक्सपोजर होते ही एक पॉइजनस गैस बन जाती है, मतलब इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, सो दिस इज सेंसिटिव टू लाइट। जो मैं कहना चाह रही हूँ ये है सेंसिटिव टू लाइट फॉर्म्स अ पॉइजनस गैस जब ये कांटेक्ट में आता है एयर के और ऑक्सीजन के ऑब्वियसली। सो ऑक्सीजन so it will form COCl2. This is phosgene. This is a poisonous gas. ये एक poisonous gas है, इसीलिए it is not advisable to use chloroform as the as an anesthetic agent। जो पहले हम बोलते थे बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म यूज कर दिया, so it is not preferable। बट ये है कि क्लोरोफॉर्म की बॉटल में इथेनॉल ऐड करके जाता है, जो क्या करता है इस गैस फॉर्म को कन्वर्ट कर देता है इनटू अ कंपाउंड व्हिच इज नॉट पॉइजनस। सो एडिंग ऑफ इथेनॉल converts COCl2 non poisonous substance। तो वो क्या बन जाता है, जब हम इथेनॉल डालते हैं तो अगर फॉस्जीन बनी है बॉटल में तो वो चेंज हो जाएगी इनटू डाई इथाइल कार्बोनेट, ये कंपाउंड बन जाएगा एंड हेंस ये थोड़ा सेफ हो जाता है आपका क्लोरोफॉर्म। ठीक है, सो ये थी ऑक्सीडेशन। देन उसके बाद है जी रिडक्शन रिएक्शंस। नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट पेज पे करती हूँ। रिडक्शन रिडक्शन रिएक्शन दो तरह से होती है, एक है पार्शियल एक है कंप्लीट। रिडक्शन रिएक्शन बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन का एक दूसरा नाम होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सो दो तरह से होगी, one that I call partial and other is complete। okay, so basically what will happen, CHCl3
ये अगर हम इसको ट्रीट करें जिंक प्लस HCl के साथ तो ये पार्शियली रिड्यूस होके डाइक्लोरोमीथेन बना देता है। एंड पार्शियल का मतलब सारे के सारे क्लोरीन रिप्लेस नहीं हुए हैं, और कंप्लीट का मतलब सारे क्लोरीन रिप्लेस हो जाएंगे, यानी कि CHCl3, मतलब इसके लिए 6 हाइड्रोजन कंज्यूम होंगे, एंड दिस विल टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ जिंक डस्ट एंड वाटर। सो इसमें सारे के सारे मतलब एक हाइड्रेट है ना बेसिकली, तो दिस विल हैपन। यहाँ पे क्या हो रहा है इस केस में, हम क्या कर रहे हैं, just a second, I guess there is something wrong with this reaction. Okay, give me a second. यस, सो मैंने यहाँ पे किया पार्शियल रिडक्शन जिसमें बना है डाइक्लोरोमीथेन, और यहाँ कंप्लीट रिडक्शन पे, यानी कि जब सारे के सारे क्लोरीन रिमूव हो जाएंगे तो यहाँ बनेगा मीथेन। ऑब्वियसली सब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि तीनों के तीनों क्लोरीन रिप्लेस हो गए, तो 3 हाइड्रोजन लग गए उसकी जगह, तो बन गया मीथेन। सो दिस इज पार्शियल एंड दिस इज कंप्लीट रिडक्शन। ठीक है, देन नेक्स्ट रिएक्शन इज हाइड्रोलिसिस। So hydrolysis of chloroform is done using potassium hydroxide. It may be alcoholic or it may be aqueous, doesn't matter. And then it is solution is boiled. What happens is ये जो तीनों क्लोरीन है ना, इनकी जगह 3 OH लग जाते हैं KOH के, ये 3 OH 3 मॉलिक्यूल्स दिए तो ये लग जाते हैं, एंड क्योंकि 3 यहाँ से पोटेशियम गए, 3 यहाँ से Cl गए, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ KCl माइनस हो गए। तो ये जो कंपाउंड बना, ऑब्वियसली ऐसा कंपाउंड इज अनस्टेबल। सो ये क्या करता है, एक वाटर मॉलिक्यूल लूज करके इट फॉर्म्स फॉर्मिक एसिड which combines with potassium hydroxide from the solution to form potassium formate. So basically hydrolysis of chloroform gives potassium formate. Next is chlorination. अब ऑब्वियस सी बात है कि क्लोरोफॉर्म में ऑलरेडी क्या है, 3 क्लोरीन है, तो इसकी क्लोरिनेशन होगी तो क्या बनेगा, 4 क्लोरीन वाला कंपाउंड, यानी कि CCl4। सो ये हमें पता भी है कि सनलाइट की प्रेजेंस में ये जो हमने रिएक्शंस की थी डायरेक्ट हैलोजिनेशन, क्लोरोफॉर्म को अगर ट्रीट करेंगे तो इट विल फॉर्म CCl4, दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। वेरी सिंपल रिएक्शन, अ वेरी ऑब्वियस रिएक्शन। देन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म को कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से ट्रीट करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से ट्रीट किया जाता है एंड सॉल्यूशन को हीट कर देते हैं। देन अ कंपाउंड नेम्ड एज क्लोरोपिक्रीन इज ऑब्टेन्ड, अ वेरी डिफरेंट कंपाउंड, अब रेयरली पढ़ेंगे अपनी इसमें बुक में। दिस इज नोन एज क्लोरोपिक्रीन, ये कंपाउंड यूज होता है। विद दिस कंपाउंड वी रियली स्टडी, वी कम अक्रॉस इन केमिस्ट्री, वी रियली कम अक्रॉस इन केमिस्ट्री, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म गिव्स दिस कंपाउंड नोन एज क्लोरोपिक्रीन। नेक्स्ट है आपकी डीहेलोजिनेशन, मतलब जितने भी हेलोजन हैं आपके इसके अंदर क्लोरोफॉर्म में वो रिमूव हो जाए। डी नॉट हाइड्रो, डीहेलोजिनेशन, डी यानी कि क्लोरोफॉर्म में 3 हाइड्रोजन है, तो तीनों है, 3 हाइड्रोजन नहीं 3 हेलोजन है, सो रिमूवल ऑफ दैट। तो उसके लिए क्या किया जाता है, बेसिकली उसमें होता क्या है, 2 क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल्स सिल्वर के साथ इनको हीट किया जाता है, इट फॉर्म्स एसिटाइलिन, इथाइन बन जाता है। तो ये एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथाइन भी है, इफ यू रिमेम्बर 11th में आता है। तो इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली क्लोरोफॉर्म को अगर मैं ऐसे लिख दूं, Cl 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 एक मॉलिक्यूल, ठीक है, 6 सिल्वर के एटम्स, एंड यहाँ पे दूसरा
CH Cl Cl Cl। तो बेसिकली ये जो है ये यहाँ से रिमूव कर हो गए तीनों हेल्प क्लोरीन इधर से, तीनों क्लोरीन दूसरे मॉलिक्यूल से, एंड हमारा बन गया इथाइन प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, ऑन हीटिंग ऑब्वियसली। ठीक है, देन रिएक्शन है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होगा कि कंबाइनिंग ऑफ टू, यहाँ पे कंडेंसेशन का मतलब है कि दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, CHCl3 को जब हम एसीटोन के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, राइट, सो व्हाट हैपेंस इज, आपके ये जैसे ये CH3 है, ये वाला एक CH3 ये यहीं रहता है, यहाँ पे जो O है ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाता है इस O पे, OH, और यहाँ पे ये CCl3, तो ये डिफरेंट सा कंपाउंड बन जाता है। अगेन अ वेरी डिफरेंट कंपाउंड वी रियरली कम अक्रॉस इन केमिस्ट्री। दिस कंपाउंड इज नोन एज क्लोरीटोन, क्लोरीटोन। तो ये बन जाता है ऑन कंडेंसेशन, मतलब ये दोनों कंडेंसेशन का मतलब ये दोनों कंबाइन हो गए, बोथ ऑफ देम हैव कंबाइंड। ओके, सो एक नया कंपाउंड बन गया क्लोरीटोन। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज नोन एज कार्बाइलमीन रिएक्शन, और मैं बताती हूँ इसको क्यों कहते हैं कार्बाइलमीन रिएक्शन। See, this reaction is a test for aromatic and aliphatic amines। क्या होता है ये रिएक्शन जो है, इसमें हम क्या करते हैं, एलिफेटिक या एरोमेटिक, जैसे मैं यहाँ पे इथेनामीन ले रही हूँ, इसको क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, एंड रिएक्शन मिक्सचर को वार्म करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आइसोसाइनाइड्स, ये वाले कंपाउंड बन जाता है, प्लस 3KCl प्लस 3 वाटर। सो ये इनको बोलते हैं कार्बाइलमीज ही बोला जाता है इनको, इनकी एक अनप्लेजेंट स्मेल होती है। सो दे आर यूज, दिस स्मेल इज यूज एज अ टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी, आई मीन इट्स नॉट प्राइमरी, एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन्स। सो एरोमेटिक अमीन भी सेम वे से रिएक्ट करेगा। यहाँ पे आप एनिलीन ले लो, क्लोरोफॉर्म लो, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लो, एल्कोहलिक सॉल्यूशन को वार्म करो, सो यहाँ पे बनेगा बेंजीन आइसोसाइनाइड। So these are known as carbylamines. Just a second. Okay, let me write यहाँ पे. So N this plus 3KCl plus 3H2. So this is known as carbylamine reaction. And last reaction of chloroform is a name reaction, which is Reamer-Tiemann reaction. वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म को फिनोल के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी यूज कर सकते हैं, और 3KOH कुछ भी, एंड दोनों में से, एंड देन इसको 340 केल्विन पे हीट कराना है, कंपाउंड नोन एज सैलिसल्डिहाइड दिस इज फॉर्म्ड। NaCl होगा यहाँ पे, अगर KOH यूज करोगे तो KCl बनेगा प्लस 2H2। सो दिस कंपाउंड इज नोन एज सैलिसल्डिहाइड। This is formed. Okay, so this is known as Reamer-Tiemann reaction. Okay, so this is very simple reaction but very important one. So these were the reactions, chemical reactions of chloroform, methods of preparation of chloroform. Now we will come to the methods of preparation of iodoform. Okay, iodoform exactly वैसे ही prepare किया जाता है as chloroform, इथेनॉल और प्रोपेनॉन यूज करके, बट उसमें हम ब्लीचिंग पाउडर यूज करते थे, इसमें हम NaOCl, जो मैंने एक और मेथड बताया था, हम वो यूज करेंगे इसके अंदर। So in this what we will do, we will be using I'll explain. So now we come to iodoform.
ओके, सो आइडोफॉर्म प्रिपरेशन, इसमें हम इंडस्ट्रियल मेथड नहीं कर रहे हैं, दोनों ही लेबोरेटरी मेथड्स हैं। सो प्रिपरेशन में हमारा हो गया लेट मी चेंज द पेन। CH3 यानी कि आइडोफॉर्म, इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ओके, सो टू मेथड, टू वही वेज हैं दोनों जो लेबोरेटरी मेथड के थे पहले हमारे, इथेनॉल एंड दूसरा एसीटोन और प्रोपेनोन। एंड यहाँ पे हम यूज करेंगे, वी विल बी यूजिंग, उसमें हमने NaOCl बताया था मैंने, सोडियम हाइपोक्लोराइड, यहाँ पे NaOI चाहिए हमें, यूजिंग आयोडीन इन दी प्रेजेंस ऑफ ईदर सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट। सेम यहाँ पे भी यही, यूजिंग आयोडीन in the presence of NaOH और Na2CO3। ठीक है, तो अब स्टेप्स कर लेते हैं, मैं पैरेलल चला देती हूँ स्टेप्स इनके। स्टेप वन, ओके, यहाँ पे लेट मी चेंज द कलर। स्टेप वन, सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर लिया विद आयोडीन, it will react to form NaOI, sodium hypoiodide, sodium iodide plus water। now अब जैसे उसमें क्लोरीन बनता था, इसमें NaOI बना है, इसमें NaOI आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा और आयोडीनेटिंग यानी कि आयोडीनेशन भी करेगा। तो स्टेप 2 में क्या होगा, ऑक्सीडेशन एंड iodination by NaOI फॉर्म। तो वही करते हैं आगे। सो पहले ऑक्सीडेशन इथेनॉल की किसमें होगी, इथेनॉल विल गेट ऑक्सीडाइज टू इथेनॉल, तो C2H5OH प्लस C2H5OH प्लस NaOI एंड यहाँ पे हमारा बन जाएगा जो मैंने बोला इथेनॉल प्लस NaI प्लस वाटर। एंड अब क्या होगा, आयोडीनेशन सेम जो हमारा इथेनॉल बना है, ये बना है, इसको अब हमने इसमें आयोडीन डालना है, 3 आयोडीन डालने हैं। सो ये NaOI ही करेगा, तो यहाँ से बन जाएगा Ci3CHO प्लस 3NaOH, राइट। अब जो ये बना है, इसको स्टेप 3 में NaOH क्या कर देगा, हाइड्रोलाइज, उसमें क्या कर रहा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोलाइज कर रहा था। सो इसमें हाइड्रोलिसिस होगी, Ci3CHO will react with will get hydrolyzed with NaOH to form आइडोफॉर्म एंड साथ में बनेगा सोडियम फॉर्मेट, उसमें बन रहा था कैल्शियम फॉर्मेट। ओके, राइट। सो ये है हमारी स्टेप्स ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन को अगर सिंगल स्टेप में लिखना हो, सिंगल स्टेप तो भी लिखा जा सकता है। सो इट इज लाइक इथेनॉल प्लस, इसमें कंज्यूम होंगे 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव आइडोफॉर्म प्लस सोडियम फॉर्मेट प्लस 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम आयोडाइड और यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये हमारी कंप्लीट रिएक्शन हो गई सिंगल स्टेप में। ठीक है,
अब आ जाते हैं अपने इस मेथड पे, एसीटोन वाले केस पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस पे स्टेप 1 सेम है, स्टेप 1 सेम जो मैंने यहाँ किया, ये वाला, राइट। स्टेप 2, अब इस केस में ऑक्सीडेशन नहीं होगी, इसमें सिर्फ क्लोरीनेशन आयोडीनेशन होगी। स्टेप 2 आयोडीनेशन। ओके, सो बेसिकली जो आपका एसीटोन है या प्रोपेनोन है, इसमें आयोडीन ऐड होगा। सो 3NaOI, this will react to give CI3CO CH3N plus 3NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब लास्ट स्टेप सेम हाइड्रोलिसिस, जो ये आपका बना आयोडीन के साथ, जो ट्राई आइडो प्रोपेनॉन बना है, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोलाइज होगा। तो स्टेप 3 है हाइड्रोलिसिस। ओके, सो क्या बना, CI3C डबल बॉन्ड O CH3, इसको NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कर देगा, हाइड्रोलाइज कर देगा इनटू आइडोफॉर्म, प्लस साथ में यहाँ पे बनेगा सोडियम एसीटेट। वहां बना था सोडियम फॉर्मेट, यहाँ बना सोडियम एसीटेट। तो ये रिएक्शन होगी। और इसको अगर हमें अगेन सिंगल स्टेप में लिखना हो, सिंगल स्टेप में, तो हम लिख सकते हैं एसीटोन, ओके, प्लस आयोडीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, हीट करो, इट विल फॉर्म आइडोफॉर्म प्लस सोडियम आयोडाइड प्लस सोडियम एसीटेट प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। सो ये हो रही है हमारी सिंगल स्टेप रिएक्शन। अब एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यही रिएक्शन अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह सोडियम कार्बोनेट से करें, then what will happen? So reaction with same reactions with not reactions with reactions using सोडियम कार्बोनेट। तो इथेनॉल के केस में रिएक्शन होगी C2H5OH प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन प्लस 3 मॉलिक्यूल्स, उसमें 6 मॉलिक्यूल रखते थे सोडियम हाइड्रोक्साइड के, इसमें लग रहे हैं 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। एंड हमारे जो प्रोडक्ट्स बनेगा ऑब्वियसली, एक तो हमारा आइडोफॉर्म बनेगा, दूसरा हमारा इथेनॉल के केस में हमेशा सोडियम फॉर्मेट बनता है, पहले भी सोडियम फॉर्मेट ही बना था, ठीक है। और सोडियम आयोडाइड पहले भी बना था, अब भी बनेगा, वाटर पहले भी बना था, अब भी बनेगा। एक एडिशनल चीज बनेगी, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट है तो CO2 निकलेगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एक बाई प्रोडक्ट जरूर बनेगा, ये होगा। तो पिछले और इसमें डिफरेंसेस ये, बाकी बैलेंसिंग तो ऑब्वियसली डिफरेंट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफरेंट है। एंड अगर यही रिएक्शन हम एसीटोन के साथ करते हैं प्लस आयोडीन, तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन लगेंगे एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट लगेंगे। अगेन हीट, तो यहाँ पे वही पहले आइडोफॉर्म बनेगा, ये तो बनता ही है, सोडियम फॉर्मेट भी बनता है, राइट, सोडियम आयोडाइड भी बनता है, राइट, वाटर भी बनता है, करेक्ट, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा इन एक एडिशनल चीज। तो ये है रिएक्शंस व्हेन वी यूज सोडियम कार्बोनेट, एंड दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आइडोफॉर्म। नाउ कमिंग टू द केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ आइडोफॉर्म, ये थोड़ी कम है एज कंपेरेटिव टू क्लोरोफॉर्म की। सो फर्स्ट है हमारी रिडक्शन, अगेन आइडोफॉर्म को पार्शियली हम रिड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन के साथ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बेसिकली,
using red phosphorus and HI, that is hydrogen iodide, and यहाँ पे बनेगा डाइआइडो मीथेन प्लस हाइड्रोजन आयोड. ओके, देन आपका है सेकेंड रिएक्शन, दैट इज हाइड्रोलिसिस. एग्जैक्टली सिमिलर है जैसे मैंने करी थी क्लोरोफॉर्म के केस में. तो रिएक्शन जो भी है क्वाइट सिमिलर है. आइडोफॉर्म, एंड क्या लिया था उसमें मैंने, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक और एक्वस. एंड यहाँ पे पहले बना था एक अनस्टेबल कंपाउंड OH OH OH, जिसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल के बन गया था फॉर्मिक एसिड, और फिर इस फॉर्मिक एसिड में हमने डाला हमारा एक और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूल कंज्यूम हुआ और बन गया पोटाशियम फॉर्मेट HCOOK. तो ये हमारी हाइड्रोलिसिस एग्जैक्टली सिमिलर जैसा क्लोरोफॉर्म ने की थी. देन डीहेलोजिनेशन भी एग्जैक्टली सिमिलर है. उसमें भी इथाइन बना था, एसिटिलीन बना था, इसमें भी वही बनेगा, डीहेलोजिनेशन. ओके, सो सेम आइडोफॉर्म के दो मॉलिक्यूल्स, सिल्वर डस्ट, सिल्वर के साथ, ओके, एंड आइडोफॉर्म का एक और मॉलिक्यूल मैंने ऐसे लिखा, हीट किया तो ये आयोडीन निकल जाएगा और बन जाएगा इथाइन प्लस 6AgCl. ठीक है, और कार्बाइलमीन रिएक्शन भी एग्जैक्टली सिमिलर है. मैं यहाँ पे दोबारा नहीं लिखूंगी, सिर्फ इतना फर्क है कि उसमें आपका जो कार्बाइलमीन रिएक्शन थी सेम एज विद क्लोरोफॉर्म, सेम एज विद क्लोरोफॉर्म. उसमें अगर आपको याद हो तो आपके बाय प्रोडक्ट में KCl बन रहा था, यहाँ पे KCl, वहां यहाँ पे KI बन जाएगा. आइडोफॉर्म में CHI3 है तो आइडोफॉर्म बन जाएगा. बाकी ये और ये प्रोडक्ट बाकी सारा कुछ सेम बनेगा, ओनली 3KI हो जाएगा इस केस में. ठीक है, तो मैं रिएक्शन नहीं लिख रही हूँ, एग्जैक्टली सिमिलर है एज विद क्लोरोफॉर्म. अब इंपॉर्टेंट चीजें हैं अबाउट आइडोफॉर्म. ओके, सो देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स जस्ट मैं डिस्कस कर रही हूँ. सो ये है कि जो आइडोफॉर्म है अगेन ये अनस्टेबल होता है when it comes in contact with air or sunlight it liberates iodine. तो ये decompose हो जाता है आइडोफॉर्म, यानी कि CHI3 decomposes in the presence of air or sunlight to liberate iodine, and iodine is used as an antiseptic. So इसका एक ये यूज हो जाता है, बन जाता है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी हो जाती है. ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज और है इसमें कि एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट के साथ आइडोफॉर्म रिएक्ट करके येलो प्रेसिपिटेट देता है, जबकि क्लोरोफॉर्म प्रेसिपिटेट्स नहीं देता है. तो मैंने एक क्वेश्चन था MCQ का while I was going through some worksheet and I came across, it said that क्लोरोफॉर्म, I mean इस तरह का था कि क्लोरोफॉर्म reacts with alcoholic silver nitrate to give precipitates. I mean assertive, जो आपके जो क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के थे वो, I am not able to recall the question, but it was somewhat like that कि statement दी हुई थी, you know, it was then option देते हैं ना नीचे जो आपके जो आती हैं. I forgot the question. I'll try to find out and put it in the worksheet. Otherwise, मतलब basically वो ये था that you should know that chloroform doesn't give yellow precipitates with your alcoholic silver nitrate, while iodoform gives yellow precipitates with alcoholic silver nitrate. So that is important. Gives, जो statement assertion वाले जो आते हैं MCQs, उसमें कुछ क्वेश्चन था, gives yellow precipitates with alcoholic silver nitrate while CHCl3 does not, chloroform does not, ये नहीं देता है. ओके, और आई थिंक एक क्वेश्चन ऐसे भी था कि ऑप्शन थी
कि इसमें से कौन सा जो है वो गिव्स येलो प्रेसिपिटेट्स विद अल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट, एंड दैट वाज आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म एंड आई थिंक CCl4, CH2Cl2, ऐसे कुछ ऑप्शंस थी उसमें। among those आइडोफॉर्म इज द वन दैट गिव्स येलो प्रेसिपिटेट्स विद अल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट। तो एक ये चीज है। देन आइडोफॉर्म टेस्ट, now which is again very important, आइडोफॉर्म टेस्ट। ओके, आइडोफॉर्म टेस्ट। सो ये एग्जैक्टली वही चीज है जो हमने प्रिपरेशन ऑफ आइडोफॉर्म की है हमने, ये वही टेस्ट है। आइडोफॉर्म के येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स होते हैं। तो हमने देखा कि इथेनॉल जब करता है रिएक्ट, तो इथेनॉल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल को हमने जब यूज किया था प्रिपरेशन के लिए, तो हमें समझ आ गया कि इथेनॉल से हम आइडोफॉर्म बना सकते हैं, प्रोपेनोन से हम आइडोफॉर्म बना सकते हैं, है ना। तो येलो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। और हमने क्या यूज किए थे, और रिएजेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड आयोडीन या फिर सोडियम कार्बोनेट और आयोडीन। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आइडोफॉर्म टेस्ट इज व्हाट, ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स हैं अदर देन इथेनॉल एंड एसीटोन दैट ऑन रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड आयोडीन और सोडियम कार्बोनेट एंड आयोडीन फॉर्म आइडोफॉर्म, येलो प्रेसिपिटेट्स ऑफ आइडोफॉर्म। तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट वही है, मतलब बेसिकली जो हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन किया था, जिसको मैंने सिंगल स्टेप में लिखा है पीछे, ये दिस इज आइडोफॉर्म टेस्ट, दिस इज आइडोफॉर्म टेस्ट सिंगल स्टेप में जो मैंने लिखा है। चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, ये ले लो, यहाँ पे जो आइडोफॉर्म है इसके येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। और यहाँ पे इथेनॉल भी दे रहा है, प्रोपेनॉन भी दे रहा है। इन द सेम वे जब हम NaOH आयोडीन से करा रहे हैं तब भी यही हो रहा है, आइडोफॉर्म बन रहा है, दोनों केसेस में येलो प्रेसिपिटेट्स आ रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स हैं अदर देन इथेनॉल एंड प्रोपेनॉन जो आइडोफॉर्म देते हैं, जो आइडोफॉर्म देते हैं उनका आइडोफॉर्म टेस्ट आता है, मतलब येलो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। तो आइडोफॉर्म टेस्ट इज व्हाट, कि compounds that give iodoform test and compounds that don't give iodoform test. So compounds that give iodoform test, that means that form iodoform on reacting with sodium hydroxide or iodine and iodine or sodium carbonate and iodine are compounds जिसमें मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होता है कार्बोनिल ग्रुप से, यानी कि CH3CO, ये ठीक है। और या फिर इसको हम ऑक्सीडाइज, मतलब हम ऐसा कोई कंपाउंड लें जो इसमें ऑक्सीडाइज होता है, जैसे कि मैंने आपको याद होगा इथेनॉल लिया था, इथेनॉल लिया था, इसको हमने ऑक्सीडाइज कर दिया था इथेनॉल में। इथेनॉल क्या होता है, यही तो होता है जिसमें मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है कार्बोनिल से। सो ऐसे कंपाउंड्स बेसिकली जिनमें CH3CO आता है, आप ऐसे पहचान लीजिए, या कंपाउंड्स जिसमें ऐसे होता है, आप स्ट्रक्चर जिनमें मैं आपको इजी कर देती हूँ ऐसे वाले। तो कंपाउंड्स कंटेनिंग दिस पार्ट और दिस पार्ट विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, और बाकी नहीं देंगे। सो मैं आपको एग्जांपल देके समझा देती हूँ। देखिए जैसे अभी हमने किया इथेनॉल, तो समझ आ गया, इथेनॉल तो ऑब्वियसली दे रहा है बिकॉज इथेनॉल में ये स्ट्रक्चर बन रहा है। इथेनॉल को हम ऐसे लिख सकते हैं CH3COH H, यही मैंने बोला कि ये वाला पार्ट होना चाहिए, ये पार्ट है, ये देखिए ये पार्ट है। इथेनॉल ऑब्वियसली, इथेनॉन नॉट इथेनॉन सॉरी प्रोपेनॉन, ये पार्ट है, ये देखिए ये पार्ट है, राइट, ठीक है। देन एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड है लैक्टिक एसिड बोलते हैं जिसको हम, जो है ये OH, COOH, देखिए इसमें ये पार्ट है, दिस इज नोन एज लैक्टिक एसिड। तो ये टेस्ट देता है। तो ये कैसे यूज होता है, आपको ऐसे आएंगे, दो कंपाउंड्स दिए होंगे, बोलेंगे आपको पूछा जाएगा विच वन ऑफ दीज गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट, या फिर आपको चार कंपाउंड्स दे देंगे ऑप्शंस, या फिर आपको ऑप्शंस में पूछेंगे तो डिफरेंट वे में पूछेंगे आपको कि विच अमंग दीज गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं मीथेनॉल और इथेनॉल की, तो ऑब्वियसली इथेनॉल देगा, मीथेनॉल नहीं देगा, बिकॉज मीथेनॉल क्या है, मीथेनॉल को अगर मैं स्ट्रक्चर को इलैबोरेट करूं तो मीथेनॉल ये है, इट इज नॉट दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर, जबकि इथेनॉल है तो ये नहीं देगा ये टेस्ट। इन द सेम वे प्रोपेन 1-ऑल नहीं देगा लेकिन प्रोपेन 2-ऑल देगा, ये नहीं देगा लेकिन प्रोपेन 2-ऑल, मतलब
ये देगा, ये देगा, दिस विल गिव दिस टेस्ट। ठीक है, इन द सेम वे ब्यूटेन 1-ol, अभी आप ड्रॉ कर लीजिएगा, ब्यूटेन 1-ol नहीं देगा, ब्यूटेन 2-ol देगा। आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके समझ सकते हैं। मिथेनल यानी कि ये नहीं देगा, लेकिन इथेनल क्योंकि उसमें CH3CO कार्बोनिल के साथ मिथाइल अटैच्ड है तो ये देगा, राइट। इन द सेम वे अगर मैं कीटोन्स पे आ जाऊं तो ये वाला कीटोन देगा, इसमें डायरेक्टली कार्बोनिल से मिथाइल अटैच्ड है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं ये वाला कीटोन तो इसमें कार्बोनिल के साथ मिथाइल नहीं है, इथाइल अटैच्ड है, तो ये नहीं देगा। देखिए कार्बोनिल के साथ इथाइल अटैच्ड है, ये नहीं देगा, बट ये देगा। तो ऐसे आपको आ सकता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन okay, so to differentiate between particular group of compounds using iodoform test। तो ये तो था आपका iodoform test, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया क्या है iodoform test, बहुत इंपॉर्टेंट है। iodoform test is very very important, let me tell you, बिकॉज ये क्लास ऑफ कंपाउंड में डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है। देन एक चीज है इंपॉर्टेंट, दैट इज डिस्टिंक्शन टेस्ट बिटवीन, इसको मैं किसी और कलर से मार्क कर देती हूँ, distinction test between haloalkanes and haloarenes, ये भी इंपॉर्टेंट है, haloalkanes and haloarenes, एंड ये टेस्ट है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। तो मैं आपको बता देती हूँ, haloalkanes give silver nitrate test while haloarenes do not give silver nitrate test। और ये टेस्ट क्या, ये बता देती हूँ मैं आपको। सो पहले मैं बता देती हूँ, haloalkanes give AgNO3 test, haloarenes do not। टेस्ट क्या, पहले टेस्ट समझ लेते हैं। आपको कोई रिएक्शन नहीं करनी है इसमें, आपको बस टेस्ट समझना है। इस टेस्ट में क्या करते हैं, आपको टेस्ट करना ही है कि ये अल्काइल हैलाइड है या अराइल हैलाइड है। सो व्हाट यू विल डू, अल्काइल हैलाइड को या जो भी आपका कंपाउंड है, जो भी रिस्पेक्टिव हैलाइड है, अराइल अल्काइल लेंगे, उसको वार्म करेंगे अल्कोहलिक केओएच के साथ, देन उसको सोल्यूशन को कूल किया जाता है, उसमें डाइल्यूट सिल्वर नाइट्रेट डाला जाता है, सॉरी उसमें डाइल्यूट HNO3 डाला जाता है, एंड उसके बाद उसमें एसिडिफाइड सॉल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट डाला जाता है। अगर प्रेसिपिटेट्स बनते हैं हैलाइड के, सिल्वर हैलाइड के, तो दैट मींस आपका रिस्पेक्टिव हैलाइड अल्काइल हैलाइड है। अगर प्रेसिपिटेट्स नहीं बनते हैं तो दैट इज अराइल हैलाइड। आई टेल यू क्या है क्या। हमने क्या किया इसमें, अपने अल्काइल और एराइल हैलाइड को लिया, क्या किया इसमें, इसमें इसको अल्कोहलिक KOH डाला, वार्म किया, फिर इसको कूल किया, फिर कूल के करके इसमें डाल दिया हमने डाइल्यूट HNO3, फिर हमने ऐड कर दिया सिल्वर नाइट्रेट। तो अगर प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड तो इट इज अल्काइल हैलाइड, एंड नहीं बनते हैं तो इट इज अराइल हैलाइड। एंड इसका रीजन क्या है कि बेसिकली प्रेसिपिटेट्स बनेंगे सिल्वर हैलाइड के। सिल्वर हैलाइड मतलब जैसे यहाँ पे ये RX है और यहाँ पे आपका बेंजीन के साथ ये लगा हुआ है, तो जो एल्काइल हैलाइड होगा उसकी हेलोजन रिप्लेस होके AgX बनेगा, तो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। यहाँ पे ये रिप्लेस नहीं हो सकती है, ये हाइड्रोजन रिप्लेस, ये हेलोजन रिप्लेस नहीं हो सकती, इससे प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे। सो एल्काइल हैलाइड्स गिव दिस टेस्ट, एराइल हैलाइड्स डोंट। एल्काइल हैलाइड्स के अलावा बेंजाइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड्स भी ये टेस्ट देते हैं।
So I'll tell you, if, no, I'll write it like this: other than alkyl halides, benzyl halides and allyl halides. मैं बताती हूँ क्या होते हैं allyl halides. Allyl halides, they give this test, क्योंकि उनमें भी हेलोजन लेबाइल होती है. लेबाइल मतलब रिप्लेसेबल होती है, यानी कि इजीली हम रिमूव कर सकते हैं. तो अब बेंजाइल हैलाइड क्या होगा? बेंजाइल हैलाइड इज दिस CH2H. इसकी भी हेलोजन जो है वो लेबाइल है. लेबाइल मतलब डिस्प्लेसेबल है इजीली. और विनाइल सॉरी एलाइल क्या हुआ? एलाइल हो गया आपका ये CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl. दिस इज एलाइल, दिस इज बेंजाइल. इनकी हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है इजीली, लेबाइल है. ये भी मैं यहाँ पे क्लोराइड की जगह हेलोजन X डाल रही हूँ, तो लेबाइल है. ओके, इन द सेम वे अदर देन अराइल हैलाइड्स, और कौन टेस्ट नहीं देते हैं? अदर देन एराइल हैलाइड्स, विनाइल हैलाइड्स don't give this test, don't give this test, क्योंकि उनकी भी हेलोजन जो है वो इनर्ट होती है, टफ होती है. क्या होते हैं? विनाइल CH2 डबल बॉन्ड, ये होते हैं विनाइल हैलाइड. दिस इज विनाइल हैलाइड, यानी कि जिस कार्बन पे हेलोजन लगा है वहां पे डबल बॉन्ड भी है. अब इसका रीजन क्यों होता है? इनकी हेलोजन इनर्ट क्यों होती है? इनर्ट. इसकी हेलोजन इनर्ट क्यों है? पता है, हमने पढ़ा ही है ये तो. क्योंकि इनमें रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है. तो आपने पढ़ा भी है कि जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जबकि अराइल हैलाइड्स कम रिएक्टिव होते हैं. इन द सेम वे इनके साथ भी वही है, रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है. ये देखो, इस बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, इसीलिए इनकी जो हेलोजन CX बॉन्ड है वो टफ है टू ब्रेक करना. सो इनकी हेलोजन इनर्ट है, जबकि इनकी हेलोजन बेंजाइल हैलाइड्स की, एलाइल हैलाइड्स की एंड एल्काइल हैलाइड्स की हेलोजन जो है वो इनर्ट नहीं है, वो लेबाइल है, वो इजीली रिप्लेसेबल है. इसीलिए ये टेस्ट देते हैं, जबकि अराइल एंड विनाइल हैलाइड्स डोंट गिव दिस टेस्ट. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर haloalkanes and haloarenes. Now in the next video I will be taking up we will be revising all the name reactions of this chapter. So this, what I think this covers all the topics of haloalkanes and haloarenes as of now. And so tomorrow we will be taking up again name reactions, एक list बनाएंगे and revision करेंगे उसकी.